You approach this comfortable looking bench chair. Then you sit down, lie back, settle in. You take in a long, deep breath, breathe slowly out, and feel even more relaxed and comfortable resting in your chair. For a few moments more, let yourself enjoy the sights and sounds of this beautiful day on the beach. I hope you feel calm, relaxed, and comfortable as this meditation comes to an end. When you feel ready, you can gently bring your attention back to the room, still letting yourself feel nice and comfortable sitting where you are. Thank yourself for taking the time to meditate today. I hope you enjoyed this meditation, and I look forward to seeing you in the next one. All right. So, how are you feeling now? Did you notice any difference in your body before this meditation and after? I feel lighter to the point that I just want to go sleep now. Gigi, sorry, can you please repeat? I'm saying that I feel lighter to the point that I want to go sleep now. All right. I think it's time to wake you all up then. All right. Lina said she's feeling same. Looks like mother is feeling light, feeling sleepy. All right, great. So I think आप लोग काफी calm down हुए हैं. अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई emotion आया during this? Any emotion came up when you were doing this exercise? When you were imagining yourself in the beach? Calm था बहुत. Like it Calm wasn't था, ठीक overwhelming or anything. Mine wasn't loud. So बहुत calm था. ठीक है. किसी को कोई difficulty महसूस हुई to visualize this scenario? नहीं. ठीक है, perfect. अच्छा, अगर आप किसी और को कहे, कोई आपसे किसी और को आप कहें कि ये करो गाइडेड इमेजरी, और वो आपको कहे कि इसका क्या फायदा होता है, इसको क्यों हमने करना है, तो व्हाट वुड यू से टू दैट पर्सन? किस तरह से उसको कहेंगे कि नहीं ये करो, इट्स गुड फॉर यू? I would try to explain to them that this is going to help them take a break from what's happening around them. Pause. Let their mind be in control of their bodily sensations and calm down. और उस तरीके से they wouldn't probably feel overwhelmed. तो उनको उनके हिसाब से ये बात समझानी पड़ेगी so that they would know कि ये उनके लिए beneficial है. ठीक है, perfect, thank you. बिल्कुल सही. Anyone else who would also like to add on something? कुछ और कहना चाहेंगे to your client if the person is, अगर वो ये कहता है कि मैंने नहीं करनी, I don't want to do it, then what would you say to that person? कोई क्लाइंट नहीं करना चाह रहा गाइडेड इमेजरी, तो उसको क्या कहेंगे आप? आई थिंक सारे सो गए हैं वाकई में. प्लीज सारे उठ जाएं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है. ट्राई टू बी प्रेजेंट एंड मुझे बताएं कोई अगर नहीं करना चाह रहा गाइडेड इमेजरी, तो उसको क्या फिर कहेंगे? जी अलीना. I think sharing research evidences on how it helps could be beneficial. ठीक है, But also, if someone बिल्कुल doesn't want सही. to do it, it's not our place to force them to try something. हाँ, So बिल्कुल. consent also matters.
हाँ, कंसेंट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, मैंने ये आपको, अगर मैं पहली क्लास में ही आपको गाइडेड इमेजरी करा देती और मैं आप सबसे हेलो हाय के फौरन बाद ही कहती कि चले इमेजिन करें, तो शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते टू विजुअलाइज और टू गो टू दैट स्पेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेपो बिल्ड करें, उनसे पहले बातचीत करें, और हो सकता है पहले सेशन में वो नहीं करना चाहे, बट आफ्टर फ्यू सेशंस व्हेन दे फील कंफर्टेबल दे माइट से कि ठीक है, आई एम विलिंग टू have this done this exercise with you. अगर वो नहीं comfortable होता तो you give them some time to do it. ठीक है, alright, let's begin. कुछ स्किल्स रह गई हैं, उसको आज हमने ख़त्म करना है, बट आई वांटेड कि हम, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इस तरह के थेरेपी में इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ी बहुत पढ़ाई के अलावा भी और भी चीज़ों के बारे में बात करें, कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, सो दैट वी कैन लर्न अबाउट ईच अदर एज वेल. सो पहले आई वांटेड कि आज हम पहले वो कर लेंगे, फिर अब जितना भी टाइम हमारे पास होगा तो हम आज इसको फिर वाइंड अप कर लेंगे. Alright, so we were talking about pros and cons yesterday. यही भी हमने खत्म किया था, और आई थिंक काफी लोगों को इस चीज की अब समझ आ गई होगी कि क्या मतलब है प्रोज एंड कॉन्स का, या किस चीज के लिए हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हमने सबसे पहले क्या करना है, जो भी अनहेल्दी अर्ज हमें आ रहा है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने डिस्क्राइब करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एक्टिंग ऑन दैट अर्ज. ठीक है, वो अनहेल्दी अर्ज हमें आया है, गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है कि उसको हमें जवाब देना है, पहले हमने उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालने हैं. प्रोज एंड कॉन्स उसके क्या हो सकते हैं कि उसी टाइम पे अगर आपने किसी को जवाब दे दिया तो यू माइट फील दैट रिलीफ, यू माइट फील के बहुत अच्छा हुआ मैंने इसका जवाब दे दिया, उसका मैंने मुंह बंद कर दिया, तो वो इमीडिएट आपको रिलीफ जरूर मिलेगा कि आपने एक्सप्रेस किया अपना एंगर. लेकिन अगर उसके हम कॉन्स देखें तो फिर डेफिनेटली वो शायद बात बढ़ जाए, इट माइट एस्केलेट द फाइट, यू माइट स्टार्ट रिग्रेटिंग व्हाट यू हैव डन. उसी तरह से अगर हमें निकालने हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रेजिस्टिंग दैट अर्ज. शॉर्ट टर्म क्या होगा कि आपको शायद उस टाइम पे अनकंफर्टेबल फील हो, डिस्टर्ब आप हो जाए, काफी देर तक आप अपने आप को उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखें. लेकिन प्रो क्या होगा, फायदा क्या होगा कि आपने सिचुएशन को वर्स नहीं किया, उसी टाइम पे आपने काम डाउन आप हो गया, आपका रिलेशनशिप बच गया, आपने कोई ऐसी चीज नहीं की जो आपको कल को रिग्रेट हो. सो ये जरूरी होता है करना, और कोशिश ये करनी कि अर्ज को करने से पहले ही हम उसका प्रोज एंड कॉन्स निकाल लें. हम क्या करते हैं कि करने के बाद हम सोचते हैं कि अगर मैं ये करता तो उसका ये फायदा होता, अगर मैं ना करता तो फिर ये फायदा होता. हमने पास्ट टेंस में कम बात करनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर में ज्यादा बात करनी है. ठीक है, और यही स्किल है जो हमें ये चीज सिखाती है कि अर्ज अर्ज जो है ना वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ होती है, और हर अर्ज को पूरा करना जरूरी नहीं है. Sometimes that urge feel urgent, but it does not mean that it's helpful. It does not mean कि ये आपको कल को फायदा देगी. एंड कभी कभार कुछ टाइम के लिए डिस्कम्फर्टेबल हो जाना आपको बिगर पिक्चर में फायदा भी देता है. ठीक है, एंड लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट कि डीपीटी या डिस्ट्रेस टॉलरेंस कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपने इमोशन को सप्रेस कर लें, उसको खत्म कर लें, वो फील ही ना करें. वो सिर्फ ये आपको सिखाता है दैट विच what are the ways that we can use to respond to our emotion in a healthy way. ठीक है, healthy ways आपको सिखाते हैं कि हमने उस इमोशन को रिस्पॉन्स कैसे करना है. ऑलराइट, चले अब लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा जी, अब इसकी आई थिंक लास्ट स्किल एक रह गई है. हाँ जी, हाउ टू सेल्फ सूट. अच्छा, अभी सेल्फ सूदिंग भी जो है ना वो डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्केल में ही आती है, और जैसे गाइडेड इमेजरी हो गई, ये भी माइंडफुलनेस या डिस्ट्रेस टॉलरेंस में आती है, बिकॉज ये इट हेल्प्स यू टू काम योर नर्वस सिस्टम. जहाँ जहाँ आपको फील हो, जब जब फील हो दैट द इमोशंस आर बीइंग ओवरवेल्म्ड, यू कैन यूज दिस एक्सरसाइजेस टू हेल्प योर नर्वस सिस्टम काम डाउन. ठीक है, बिकॉज हम जब भी डिस्ट्रेस में आते हैं आवर बॉडी गो स्ट्रेट इनटू फाइट और फ्लाइट मोड. either we have to fight it or we have to flight it. हमारी बॉडी फौरन रिएक्ट करना शुरू कर देती है. तो सेल्फ सूदिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी स्किल है दैट ब्रिंग्स अस बैक टू सेफ्टी बाय यूजिंग 5 सेंसेस. ठीक है, वी हैव टेस्ट, वी हैव स्मेल, टच, साउंड एंड साइट. ठीक है, वी कैन टेस्ट समथिंग sweet, something salt, something sour. The goal is to activate our senses and to bring back
ourselves into the present moment. Same with the smell, touch, sound and sight. ठीक है, ये आप समझ लो जैसे हमारी वो होती है ग्राउंडिंग टेक्निक। आई थिंक मैंने आप लोगों में से किसी एक के साथ कराई भी थी वो, हाँ, ग्राउंडेड थ्योरी, जिसमें हमने वो यूज किए थे, क्या नाम है, 5 सेंसेस को हमने यूज किया था, यही स्मेल, टेस्ट, साउंड, साइट एंड टच। तो दिस इज द सेम, वही एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ही है ये, ठीक है। अच्छा जी, ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट core skill of DBT, which is interpersonal effectiveness skills। और ये बहुत आप समझ ले, it's a very common and basic skill of DBT, ठीक है। और ये DBT में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात की हुई या हाईलाइट इसको किया हुआ है, because ये वो skills है that helps you to communicate assertively. It helps you to set healthy boundaries, express your needs clearly without hurting the other person, and to maintain self-respect. जैसे अलीना ने हमें आपसे शेयर किया था कि she felt that someone is hurting her self-respect। वो एक ऐसी बाउंड्री है जहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है क्रॉस करना। तो अगर वो क्रॉस हो जाए तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, किस तरह से उसे कम्युनिकेट हमने करना है कि हमारा रिलेशनशिप भी बच जाए और हमारी बाउंड्रीज भी डिस्टर्ब ना हो। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स 3 चीजों के ऊपर बात करती है, 3 चीजों को बैलेंस करने की बात करती है। यू टू फोकस ऑन गेटिंग व्हाट यू वांट, एक उस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए। दूसरी चीज, किस तरह से हम इस रिलेशन को भी हेल्दी रखें और बचा के रखें। तीसरी चीज, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना डिस्टर्ब हो। कौन सी 3 चीजें हैं? फोकसिंग ऑन गेटिंग व्हाट यू वांट, कीपिंग द रिलेशनशिप सेफ एंड हेल्दी, एंड रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। इन 3 चीजों को वो बैलेंस करने की बात करती है। अच्छा, अब कैसे हम, हाउ वी कैन इंक्रीज द स्किल इन गेटिंग व्हाट वी वांट और नीड विदाउट डिस्टर्बिंग द रिलेशनशिप और हमारी बाउंड्रीज को खराब किए बगैर। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स वी वांट समथिंग बट या हम खामोश हो जाते हैं उस सिचुएशन में आके, या हम एग्रेसिव हो जाते हैं। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स हमें बैलेंस सिखाती है कि ना हमने खामोश होना है, ना हमने एग्रेसिव होना है। हमने बात करनी है, हमने पूछना है, कॉन्फिडेंटली भी पूछना है और रिस्पेक्टफुली भी पूछना है। ना हम वहां पे ऐसे लगे कि दैट वी आर बेगिंग फॉर समथिंग, ना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्टर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई असाइनमेंट दी थी, ठीक है, और आपको एक्सटेंशन चाहिए थी, डेडलाइन आप नहीं मीट कर पाए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो आप चुप करके उसमें से 0 नंबर लेके बैठ जाएंगे, या आप अपने टीचर से, प्रोफेसर से, या जो भी उससे आप आर्ग्यू करेंगे कि प्लीज आप करें, ये क्या बात हुई, मैं फेल हो जाऊंगा, लाइक यू विल डू समथिंग। अच्छा, अब इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स हमें वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाती है कि आप उनसे बात करेंगे कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से वो डेडलाइन नहीं मीट हो सकी। मे बी यू वर नॉट फीलिंग वेल, मे बी देयर वर सम अदर थिंग्स हैपनिंग विद यू और इन द फैमिली, सो यू वर नॉट एबल टू डू इट। यू विल टेल देम कि आप इस सब्जेक्ट की वैल्यू करते हैं और आपने अच्छा काम सबमिट करना है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज कह के आपने उसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें एक एक्स्ट्रा दिन दे सकते हैं। ये होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपने अपनी बात भी कन्वे कर दी और ना अपनी रिस्पेक्ट डिस्टर्ब हुई, ना अगले को आपने डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है। हमने अपने रिलेशनशिप को भी बचाना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर बात नहीं करती, वो हमारे रिलेशनशिप को बचाने के ऊपर भी बात करती है। अच्छा, अब किस तरह से, देखिए, बहुत जरूरी होता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो होते ही डिस्ट्रक्टिव है, जिनके साथ आप जो मर्जी कर ले, इट नेवर कम्स टू द पॉइंट जहाँ पे चीजें बेहतर होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली आपकी बाउंड्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप उन्हें कह सकते हैं कि आई डिजर्व अ बेटर रिलेशन, अ बेटर फ्रेंडशिप एंड आई एम स्टेपिंग बैक फ्रॉम दिस फ्रेंडशिप। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और अगर कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है जो आपको कभी कभार इट्स हेल्दी रिलेशनशिप, लेकिन कभी कभार ऊंच नीच हो गई, कोई ऐसी बात कर दी जिससे आपकी फीलिंग्स डिस्टर्ब हो गई,
तो आपने फौरन उसको ब्लॉक नहीं कर देना या फौरन उसको कह नहीं देना कि आई एम डन विद यू। आप उनको बता सकते हैं कि व्हेनेवर यू जोक अबाउट मी इन फ्रंट ऑफ अदर्स, या जब भी तुम ये बात करते हो या ये स्पेसिफिक चीजें कहते हो, तो आई फील एम्बैरेस्ड, इट ट्रिगर्स मी, आई डोंट लाइक इट। मैं अपनी फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप को वैल्यू करती हूँ, एंड आई वांट यू टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड एज वेल। अगले को भी बताना है कि आपकी क्या बाउंड्रीज है और आपके क्या ट्रिगर्स है। अच्छा, लास्ट गोल इसका क्या है? टू बैलेंस योर नीड्स विद द नीड ऑफ अदर्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे काफी लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप कह रही है कि आप सेल्फिश हो जाओ, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, अगले के बारे में नहीं सोचो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स इसके ऊपर भी बात करती है दैट यू हैव टू बैलेंस अपनी नीड्स भी और दूसरों की नीड्स भी। ठीक है। अपने आप से पहले पूछते हैं कि व्हाट डू आई नीड, क्या ये चीज मुझे, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? डू आई नीड दिस थिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, या इस चीज की अगले बंदे को ज्यादा जरूरत है मेरे से? क्या कोई मिडिल ग्राउंड है इसका? ये क्वेश्चंस आपने अपने आप से करने हैं, तभी यू विल बी एबल टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ नीड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में देती हूँ, खास तौर पे जो आप स्टूडेंट लाइफ में जब आप सारे सिबलिंग्स हैं वो एक ही रूम में रह रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, आप एक ने पढ़ना है, एक ने सोना है, एक ने मूवी देखनी है, तो अब आप क्या करें? ठीक है। यहाँ पे फिर या तो फिर लड़ाई होती है, या तो कोई ना कोई कमरे से बाहर चला जाता है और कोई तीसरा सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर बात करनी है। वी आर गोइंग टू टॉक टू आवर सिबलिंग एंड वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट देम नाइसली कि मुझे 1 घंटे के लिए खामोशी चाहिए, मैंने पढ़ना है, 1 घंटे में पढ़ लूँ, उसके बाद जिससे मूवी देखनी है, जिससे जो भी करना है वो कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग इन अ वे कि अगले बंदे को वैल्यूएबल फील हो, अगले बंदे को रिस्पेक्टफुल फील हो कि इसने मेरी रिस्पेक्ट की है। ये बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, अपनी नीड को पूरी करने के लिए वी स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन। जब आप ये करेंगे ना, तो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे 3 जो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस के जो है वो 3 मेजर स्किल्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला है, अगर आपने अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स रखने हैं तो आपने कौन सा स्किल इस्तेमाल करना है? ये यहाँ पे हूँ मैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं जूम इन कर देती हूँ। ये, इफ योर गोल इज टू कीप एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इफेक्टिवनेस की यहाँ बात करें तो हमने गिव स्किल्स के ऊपर बात करनी है। अच्छा जी, पहले देख लेते हैं गिव स्किल्स क्या होती है। गिव स्किल्स इज हेल्प यू टू क्रिएट एंड मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, किस तरह से हम हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करें? गिव, गिव से क्या मुराद है? पहली चीज है, जी का मतलब है टू बी जेंटल, आई का मतलब है टू एक्ट इंटरेस्टेड, वी इज टू वैलिडेट, एंड ई इज टू यूज एन ईजी मैनर। ठीक है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। बी जेंटल से क्या मुराद है? हमने कभी भी, ये आपने खुद नोट करना है कि जब मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो क्या मैं उसको अटैक कर रहा हूँ, क्या मैं खुद को डिफेंड करने में लगा हुआ हूँ, क्या मैं कोई थ्रेट दे रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं कोई सरकास्टिकली कोई ऐसी टॉन्ट में बात कर रहा हूँ? ठीक है, ये बड़ा जरूरी होता है टू बी एबल टू आइडेंटिफाई। जैसा लीना ने भी हमें आज जो एग्जांपल दी थी, उसमें भी यही सारी बात थी कि शी वाज डिफेंडिंग हर ओन सेल्फ, कंटिन्यूसली वो अपने आप को डिफेंड कर रही थी, वो पूछ रही थी वाई वाई वाई, बट वो अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर रही थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग एंड वट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है। एंड इसका मतलब ये नहीं दैट आपको समझ रही है दैट यू आर वीक, इट जस्ट मीन्स दैट यू आर बीइंग इमोशनली मैनिपुलेटेड बाय द अदर पर्सन, और आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है। यू हैव टू बी नाइस टू अदर पर्सन, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम तो बहुत ड्रामेटिक हो, तुम तो बहुत ओवर एग्जैजरेट कर रहे हो, तुम यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू चिल योरसेल्फ, instead of saying that, it's important that you say that I didn't mean to hurt you. Okay, but can we talk about what happened, what's going on, why are you saying things like that? ठीक है, बिकॉज ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, इट्स ruining my सेल्फ रिस्पेक्ट, या हमारे रिलेशनशिप को ये चीज खराब कर रही है। अक्सर हम ये कहते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को भी कह देते हैं कि आप तो कभी हमारी बात सुनते ही नहीं, यू नेवर लिसन टू मी।
अब ये जो स्टेटमेंट है ना, यू नेवर लिसन टू मी, ये क्या हो रही है, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, अपनी बात कम्युनिकेट करने के चक्कर में यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू नेवर लिसन टू मी, आप उसको ये कह सकते हैं कि whenever I am talking to you, I have noticed that you are involved in other things. Can you please listen to me? Can you please stop what you're doing and then listen to me? Can you please first finish your work and when you are done, then listen to me? ठीक है, आप उनको बताएं कि आप जो कर रहे हैं उससे मुझे ये महसूस हो रहा है और मैं उसको उसको इस तरह से ठीक करना चाहती हूँ. ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्ट इंटरेस्टेड. ठीक है, अच्छा, जब बहुत सारी ऐसी जगहों पे यू ऑल्सो डिसएग्री, बहुत सारे ऐसे लाइफ में आपको लोग मिलेंगे, सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे आपको कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप उसे डिसएग्री करेंगे. वहां पे आपने क्या करना है, यू हैव टू एक्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड टू दैट थिंग, वट एवर द पर्सन इज सेइंग. You listen to that, keep listening to that person, keep your eye contact with that person, do not interrupt that person, do not assume anything and ask questions. हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी चीज ट्रिगर करती है ना, हमारे सबसे पहले जहन में आता है कि इसको मैंने ये जवाब देना है, या मैं इसको इंटरप्ट कर देता हूँ, या मैं इसकी बात रोक के अपनी बात करता हूँ. ठीक है, ये चीजें खराब करती है, इससे रिलेशनशिप खराब होते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट आप अपना कम बैक प्लान करें while they are talking, आप सिंपली कह सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट्स बॉदर्ड यू, और कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू आर सेइंग दीज थिंग्स, कहाँ से ये पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट पैदा करते हो ना, तो वो डिफेंसिवनेस को रिड्यूस करते हैं. जब आप डिफेंड करने की कोशिश पे लग जाते हो ना, तो अगले बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा अपने आप को डिफेंड कर रहा है, यानी कि कोई चीज इसको तंग कर रही है, कोई चीज को बॉदर कर रही है, तो हम और करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, ऑलराइट. बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से पूछें कि डू आई लिसन टू रिस्पॉन्ड और टू अंडरस्टैंड. क्या मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि मैं इसकी बात का जवाब दूं, या मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि मैं समझना चाह रहा हूँ उसको. ठीक है, अपने आप से पूछा करें ये चीज whenever you are listening to someone. Alright, then we have validation, validate. हमने, अच्छा, validation का ये बिल्कुल भी मतलब भी है that you agree with whatever the other person is saying. Validation का मतलब ये होता है that you convey your understanding verbally or non-verbally and you acknowledge the other person's emotion, even if you don't agree with what they are saying. For example, किसी ने आपको, कोई क्लाइंट आपके पास आया है, उसने आपको कोई ऐसी बात की है जो आपके हिसाब से लगेगा कि यार इट्स नथिंग टू थिंक अबाउट इट, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या होता है, इतनी कोई बड़ी बात ये नहीं है. ठीक है, और वाकई हो सकता है वो इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कह रहे हैं दैट यू नो आई कैन सी व्हाई इट्स मेकिंग यू एंशियस, आई कैन अंडरस्टैंड your feelings. I can I understand that it means a lot to you. It sounds like this thing mattered a lot to you. Even if you don't agree with what they are saying, but validate करें. because जब आप validate करते हो अगले बंदे को, उसकी emotional intensity कम हो जाती है. ठीक है, ये बहुत आपकी ऐसी टिप्स है जो आपको इंशाल्लाह पूरी लाइफ ये आपको इफेक्टिव रहेगी, अपने लिए भी, अपने रिलेशनशिप्स के लिए और आगे अपने क्लाइंट्स के लिए भी. अच्छा, लास्ट है जी इजी मैनर, यूज एन इजी मैनर. क्या है जी, हमारे पास एक है, मेरे ख्याल से हमना उसका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी. हाँ, हमना जो है ना वो इजी मैनर यूज कर रही है थ्रू आउट दिस कोर्स. मैं देख रही हूँ दैट शी इज ऑलवेज स्माइलिंग. ठीक है, मैं इसको जब भी मैंने हमना को देखना है, हमना के चेहरे पे स्माइल होती है, व्हेनेवर आई सी हर स्माइलिंग, मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी, यू नो, इट्स अ वेरी इफेक्टिव थिंग दैट शी डू, दैट शी इज ऑलवेज स्माइलिंग. ठीक है, Thank you, उसकी जो ma'am. फेशियल एक्सप्रेशंस उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, दैट्स वेरी सॉफ्ट. तो बेशक वो हो सकता है वो ऐसी कोई बात कर दे जो मुझे अच्छी ना लगे, बट बिकॉज ऑफ हर फेशियल एक्सप्रेशंस, बिकॉज शी ऑलवेज हैज अ स्माइल ऑन हर फेस, एंड मे बी उनकी टोन बहुत सॉफ्ट हो, बहुत लोअर हो, तो उससे क्या होता है कि वो टेंशन जो है ना वो कम हो जाती है, माहौल जो है ना वो एक रिलैक्स हो जाता है. सो ऑलवेज ट्राई टू स्माइल,
ऑलवेज ट्राई टू यूज अ लिटिल ह्यूमर इन योर लाइफ, ऑलवेज अपनी टोन हमेशा कम रखें। इवन यू, अगर आप अगले बंदे से एग्री भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप अगले बंदे को कुछ समझाना भी चाह रहे हैं, तो आप आहिस्ता आवाज में प्यार से मुस्कुरा के भी वो चीज कन्वे कर सकते हैं। सो this give, Give, is all about warmth. It's all about kindness. It's all about being compassionate about yourself and then about other person as well. बहुत सारी ऐसी जगहों पे you can be right, but still आप वो relationship खो जाते हो, खो लेते हो। क्यों? Because you don't know how to communicate. और give जो है ना एक ऐसी टेक्निक है that helps you to stay connected with the people around you. ठीक है? So this is what give is all about. अच्छा जी, any question so far? How is it? समझ लगी, अच्छी लगी आपको ये टिप्स? ठीक है जी, Yes. वेरी नाइस, ऑल राइट, परफेक्ट। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगली गोल की हम बात करें कि दैट इज इफ योर गोल, यस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू फातिमा। ऑलराइट, इफ योर गोल इज टू गेट समवन टू डू व्हाट यू वांट टू डू, ये है जी दूसरी स्किल, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवनेस, जिसमें हम डियर मैन स्किल्स इस्तेमाल करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। अच्छा जी, ये है जी डियर मैन, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेती हूँ। हाँ जी, अच्छा जी, let's talk about dear man, getting what you want. How can we get what I want instead of hurting the people around us? अच्छा जी, यहाँ पे हमने कोई इमोशनल क्लोजनेस को नहीं देखना, यहाँ पे हमने देखना है एक रिक्वेस्ट को, एक बाउंड्री को और एक चेंज को हमारी लाइफ में। सबसे पहले क्या करना है जी? डिस्क्राइब, डी इज फॉर डिस्क्राइब। स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन क्लियरली while sticking to the facts. यहाँ पे हमने कोई assumptions और judgments नहीं ऐड ऑन करनी, हमने फैक्ट्स पे रहना है। जैसे हमने माइंडफुलनेस में डिस्क्राइब के बारे में हमने पढ़ा था कि वी हैव टू डिस्क्राइब व्हाट वी आर फीलिंग, और उसमें हमने कोई जजमेंट, कोई assumptions नहीं ऐड करनी। आपने कभी भी ये ऑलवेज जैसे वर्ड्स, नेवर जैसे वर्ड नहीं यूज करने, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं आप? ये assumptions कर रहे हैं ना। यू ऑलवेज डू दिस, always happen like this, you never listen to me, you never share anything with me, you never trust me, इस तरह के लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने। ठीक है, आपने ये कहना है, जैसे अगर मैं, ये कपल थेरेपी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है डियर मैन, कि एक पार्टनर ये कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो कभी भी मेरा फोन नहीं उठाती, वाइफ कहती है आप कभी भी घर में हेल्प नहीं कराते, इस तरह के स्टेटमेंट इस्तेमाल होते हैं। तो उनको ये कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग that you never help at home, this week I have cooked 5 times dinner। देखिए आपने कैसे बात बदली है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने मेरी कभी हेल्प नहीं की घर पे, मैंने ये कहा है कि मैंने पिछले 5 दिन से कोई 5 खाने में बना चुकी हूँ। ठीक है, अगले बंदे को समझ लग गई है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि मैंने इतना काम किया तो तुमने क्या किया। ठीक है, और ये सिर्फ कपल के लिए नहीं, ये बहन भाइयों में और पेरेंट्स के साथ भी बड़ा हेल्पफुल होता है कि बहनें कहती है कि तुमने सारा दिन कुछ भी नहीं किया, मैं ही सुबह से काम कर रही थी। तो इंस्टेड ऑफ से कि तुमने कुछ नहीं किया, यू जस्ट स्टिक ऑन व्हाट यू हैव डन, कि मैंने जो है ना वो सुबह से मैंने ये किया है, बस। अगले को ना कहे कि तुमने ये नहीं किया, बिकॉज जब आप अपनी बात कर रहे हो तो अगले को समझ लग रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, then express, E is for express, share how the situation makes you feel। ठीक है, रुक से इबादत से means highlighting or discussing your side of story without accusing the other। yes, हमने अगले को accuse नहीं करना, अगले को कोई judgment नहीं पास करनी, आपने सिर्फ अपना बता रहा है कि this is the situation which I have, what I have done। ठीक है, अच्छा जी, then we have express। आपने क्या करना है जी? वही बात है, आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और वो हम क्या करते हैं, हमारा सारा फोकस होता है अगले के ऊपर, तुम तो हो ही सुस्त, तुम तो हो ही ढीठ, तुम तो हो ही इस तरह की। अगले के ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, हमने एक्सप्रेस करने अपने इमोशंस। आई फील टायर्ड, आई एम फीलिंग ओवरवेल्ड,
ठीक है, आपने अपने एक्सप्रेस करने, अगले का नहीं बताना कि वो क्या फील कर रहा है, एक्सप्रेस हाउ यू आर फीलिंग। पर आपने एक्यूज नहीं करना कि तुम इस तरह से फील कर रहे हो, यू डोंट नो हाउ व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग और फीलिंग, बट वी नो दैट, हमें अपना पता है कि हाउ वी आर फीलिंग, उसको आपने एक्सप्रेस करना है। अच्छा, देन assert, state what you need or want directly। ठीक है, ये नहीं कहना कि मे बी इफ यू कुड डू लाइक दिस, और मे बी इफ दिस इज अ पॉसिबिलिटी और दैट इज अ पॉसिबिलिटी। you state clearly that I want you to help me with cleaning the room, help me with cleaning the dishes। मैं ये काम कर लूंगी तो आप ये, इस चीज में मुझे हेल्प चाहिए। ये नहीं कहना कि तुम ये करो और मैं ये करूंगी, आपने सिर्फ ये कहना है कि मुझे इन कामों में हेल्प चाहिए। ठीक है, अगर जब आप अगले के ऊपर आप ये कहते हैं ना कि तुम ये करो, तो अगला कहता है ये तो मैंने करना ही नहीं। ठीक है, अगले को आपने नहीं बताना कि आप ये काम करो, आपने सिर्फ अपना बताना है कि आपको किस चीज में हेल्प चाहिए, एंड यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल व्हेन यू आर सेइंग दैट। ठीक है, देन वी हैव रीइंफोर्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, एक्सप्लेन द पॉजिटिव आउटकम ऑफ योर रिक्वेस्ट। आपने बेनिफिट बताना है कि इसका तुम्हें क्या फायदा होगा, बिकॉज जब अगला बंदा फायदा देखता है इस चीज में, तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करता है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ना ही मैं थकूंगी, ठीक है, ना ही मुझे गुस्सा आएगा, और ना ही हम जो है ना कोई बहस करेंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा थोड़ा सा काम तुम कर लोगे, थोड़ा सा काम मैं कर लूंगी, तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड प्लीज, एक मिनट। जी, ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको इसका क्या फायदा होगा, या हम दोनों को इसका क्या फायदा होगा, फिर ही अगला बंदे को इंटरेस्ट होगा इस काम में करने में। देन वी हैव डियर मैन का एम आ गया जी, माइंडफुलनेस। यू हैव टू स्टे फोकस ऑन द गोल। आपने एक आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना, कोई डिस्ट्रैक्शन के ऊपर नहीं आना, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू वांट। जो आपने इनिशियली स्टेट किया था कि दिस इज व्हाट आई वांट, यू हैव टू स्टिक टू दैट। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं पिछले महीने ये हुआ था, पिछले हफ्ते तुमने ये किया था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने कहना है कि इस वक्त मैं इस चीज की बात करी, सो लेट्स स्टिक टूवर्ड्स दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव अपीयर कॉन्फिडेंट। ठीक है, ए इज फॉर अपीयर कॉन्फिडेंट। आपका पोस्चर, आपका टोन, आपका आई कांटेक्ट, इट हैज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, जब आप किसी चीज से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, यू स्टिक टू दैट थिंग। ठीक है, अच्छा जी, बिकॉज जब आप whenever you are confident, it changes how others respond. All right. Then lastly we have negotiate. ठीक है, healthy communication always allows compromise. ठीक है, अगर वो ये कहते हैं कि मैं ये हूँ वो इस टाइम पे नहीं कर सकता, या आज नहीं कर सकता, कल से कर लूंगा, तो आपने उनको ये बताना है कि एक काम करते हैं कि 12 बजे से पहले पहले ये काम खत्म हो जाए। आप उनको टाइम लिमिट बता दो कि इससे पहले पहले ये चीज हो जाए। ठीक है, और अगर कल तक की गुंजाइश है तो आप कल तक का उसको कह दो, बट आप थोड़ा सा नेगोशिएट करो, और वो पॉसिबिलिटी है कि वो करवाएगा आपसे अगला बंदा। ठीक है, बिकॉज जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो वहां पे सक्सेस जरूर आती है। सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन टू दैट थिंग, बट आपने अपनी चीज निकलवानी है जो आप करना चाहते हैं, एंड मेक श्योर दैट वट एवर यू आर आस्किंग, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन टू दैट थिंग। ओके, आपने उस चीज पे क्लियर होना है, और आपने ये कहना है कि क्या मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट तो नहीं किया जब मैं उससे ये बात कर रहा था, एम आई बीइंग अग्रेसिव, एम आई बीइंग असर्टिव। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार? इस चीज में कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो कोई पूछना चाहता है तो बताएं जी। ये है जी डियर मैन, डिस्क्राइब, एक्सप्रेस, असर्ट,
reinforce, mindful, appear confident and negotiate. हाँ जी, अच्छा कोई आप में से कोई एग्जाम्पल को शेयर कर ले, कोई कोई और एग्जाम्पल के साथ मुझे बताएं कि कोई चीज आप करवाना चाहते हो तो आप कैसे करवाएंगे? हाउ आर यू गोइंग टू get that thing done? Any example that you have in your mind, you think about that example and then you implement this dear man into it. जी हरम. So it's not an example per se, but it's just something I wanted to highlight. कि अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं और हमारे पास कोई रिक्वेस्ट होती है, हमारी आदत होती है कि वी बीट अराउंड द बुश अ लॉट. हम असर्टिवनेस नहीं दिखाते हैं. हम Yes. assumptions के तौर पे चलते हैं कि अगर आप ये कर दो या मैं ये चाह रही थी कि ऐसे हो जाए. हम डायरेक्टली बात नहीं करते और उस वजह से बहुत दफ़ा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर बाद में जो है बात ख़राब हो जाती है, बिकॉज फिर पीपल जो है एक्सपेक्टेशन के साथ बैठ जाते हैं, असम्पशंस के साथ बैठ जाते हैं कि मैं समझा तुम समझ गई मेरी बात. तो आई फील लाइक दैट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि भाई आपको स्पेसिफिक और डायरेक्टनेस लानी पड़ती है जब आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है. जहाँ पे भी आपने assumptions ऐड ऑन कर ली ना या जजमेंट लगा दिया, वो अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी. जब अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी ना, वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसके बाद है हमारे पास लास्ट थिंग है जी, एक सेकेंड जी. इफ योर गोल इज टू मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो किस तरह से हमने इफेक्टिवनेस को यूज करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर सेल्फ रिस्पेक्ट? पहली चीज क्या थी हमारी कि हमने रिलेशनशिप को हेल्दी रखना है. सेकंड थिंग इज कि वी हैव टू गेट व्हाट वी वांट. और तीन चीजें कि हमने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रखना है. Alright, let's talk about this last skill of interpersonal effectiveness is fast. ठीक है जी, आपने फास्ट को तब यूज करना है जब आपका गोल हो क्या, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है, अपनी डिग्निटी को बचाना है. ठीक है, बिकॉज कभी कभार that relationship is so important to you that you don't want to, you know, let go of that relationship, but sometimes you matter more than that relationship. ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम रिलेशनशिप तो बचा लेते हैं लेकिन हमारी सेल्फ डिग्निटी खत्म हो जाती है, उसकी हम धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन हमने वो नहीं करना. ठीक है, अच्छा जी, क्या है जी फास्ट? एफ इज, ये आपने याद रखना है, ये आपको फिंगर टिप्स पे ये चीजें आनी चाहिए, बिकॉज ये आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में कभी भी इसको यूज कर सकते हैं. बी फेयर टू योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन. ठीक है, आपने ना सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना है, ना ही सारा ब्लेम अगले के ऊपर लगाना है. ठीक है, आपने अपने साथ भी फेयरनेस दिखानी और अगले बंदे के साथ भी फेयरनेस दिखानी. आपने एक बैलेंस थिंकिंग के साथ चलना. दैट यू नो, मैंने जो किया मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन जो आपने किया वो भी गलत था और आप इस चीज को भी माने. ठीक है, फेयर रहना है आपने हर चीज के ऊपर. देन नो अपॉलॉजीज. अच्छा जी, डू नॉट ओवर अपॉलोजाइज फॉर हैविंग नीड्स. ठीक है, फॉर सेइंग नो और फॉर सेटिंग बाउंड्रीज. ये वो चीजें हैं जो आपका राइट है. और अगर आपको आपका पार्टनर या कोई भी आपकी फ्रेंड या कोई anyone in your relationship, the other person is making you regret for asking for yourself or for asking for your needs, it means that there's something wrong. It's a red flag. We need to उसको फिर से चेक करने की जरूरत है कि where do we stand and what's going on in this relationship. ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो अनोइंग, आई नो मैं कभी कभार तुम्हारा बहुत सर खाती हूँ, मैं बहुत इरिटेट तुम्हें करती हूँ. यह चीजें आपने नहीं करनी, बिकॉज दैट मीन्स कि आप अपने डिग्निटी को खुद गिरा रहे हैं. ठीक है, आपने सिर्फ ये कहना है कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड सम स्पेस, आई नीड योर टाइम, आई नीड यू टू लिसन टू मी. ठीक है, कॉन्फिडेंट के साथ जैसे आप अपना हक मांग रहे हैं ना, बी कॉन्फिडेंट इन दैट. आपने हम क्या करते हैं, अच्छा मुझे पता है कि मैं बहुत बुरी हूँ लेकिन अच्छा ना तुम भी तो फिर ऐसे हो ना. दिस इज नॉट द वे. खुद को क्यों क्रिटिसाइज करें, खुद के बारे में क्यों नेगेटिव बात करें, ताकि अगला को अच्छा फील हो ना.
हम इसलिए करते हैं ताकि अगले को बुरा ना लगे कि अच्छा सिर्फ मैं ही बुरा हूँ, तुम तो बुरी हो ही नहीं। तो वी स्टार्ट ऑल्सो डिसरिस्पेक्टिंग आवरसेल्फ। डोंट डू दैट, ठीक है। सिर्फ तब अपोलोजाइज करना जब आपको ट्रूली लगे कि हाँ वाकई ही मेरी गलती है और मैंने अगले बंदे की फीलिंग को हर्ट किया है, देन यू अपोलोजाइज, ठीक है। एस इज फॉर स्टिक टू वैल्यूज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास, सबके पास अपनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज तैयार होनी चाहिए कि मेरी वैल्यूज क्या है, क्या चीजें हैं जिनके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, एंड यू स्टिक टू दैट, ठीक है। Just because we want the other person to like us, just because we want to be the part of the group, हम अपनी values को बदल देते हैं। वो आज दोस्त होगा, कल होगा, बट वो परसों वो नहीं रहेगा। Why? Because you have changed yourself to be liked by the other person, और इस तरह से आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपने पूछना है, ठीक है, कि मेरी जो वैल्यूज है क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्या वो वर्दी है, या ये बंदा या बंदी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप कहें कि आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दीज थिंग्स, दिस इज समथिंग टोटली अगेंस्ट माय मोरल वैल्यूज, मैं इस चीज को कभी भी नहीं कर सकती, एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट यू, ठीक है। ये मेरी एक पर्सनल चीज है, आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, ठीक है। क्या होता है, अगला क्लास में एग्जाम हो रहा है, दोस्त कहती है यार चीटिंग कर लेते हैं, तुम भी कर लेना, कोई बात नहीं, सब करते हैं। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन यही से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको प्रेशर आता है कि यार गॉसिप्स, ठीक है। एक गॉसिप एक ऐसी चीज है जो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने वाकई देखे कि जो लोग नहीं करते ना, उनको जो मर्जी आप करवा लो वो नहीं करते। वो ये कि यार आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, वो उस ग्रुप से निकल जाते हैं, उस कन्वर्सेशन से निकल जाते हैं, बिकॉज दैट्स अगेंस्ट देयर मोरल वैल्यू। एंड व्हेन यू स्टिक टू योर वैल्यू, अदर पर्सन ऑल्सो रिस्पेक्ट यू। जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू बिकॉज यू आर रिस्पेक्टिंग योर ओन वैल्यूज, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट, लॉन्ग टर्म सेल्फ रिस्पेक्ट, ये रूल है जिंदगी का। शॉर्ट टर्म के लिए आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर ले, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। एंड लास्टली इज बी ट्रूथफुल, ठीक है। डू नॉट लाई, डू नॉट मैनिपुलेट, डू नॉट एग्जैजरेट, डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस, बिकॉज जो आपकी इंटीग्रिटी है ना, दैट्स बिल्ड योर इंटरनल स्ट्रेंथ। जब आप सच्चे होते हैं ना, तब आपको कोई चीज नहीं तोड़ सकती। यू स्टिक टू दैट थिंग एंड यू स्टे ऑन दैट थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो आपको फॉर लाइफ आपके साथ वो चीज रहती है, ठीक है। आप कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, बॉस ने कह दिया कि क्लाइंट को झूठ बोल दो, आप उनको कह दो आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। कैन यू आस्क मी टू डू समथिंग एल्स, मे बी आई कैन डू दैट, ठीक है। सो दिस इज द पास्ट थिंग। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। द की टू सक्सेस विद इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल इज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये आपकी नेचर में आ जाएगा, आपका पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ये बन जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस विद योर फैमिली, प्रैक्टिस विद स्ट्रेंजर्स एज वेल, ठीक है। स्ट्रेंजर तो आपको नहीं पता कौन है क्या नहीं है, आपको नहीं जानता, बट आप अपनी स्किल को करने के लिए आप सीख रहे हैं ना, बार बार उसको करेंगे तो यू विल गेट टू लर्न अबाउट इट। रोल प्ले सिनेरियोज इन योर माइंड यूजिंग इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स। रोल प्ले करें, खुद से पूछे, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, मेरी फ्रेंड मुझे कह रही होगी कि तुम जो हो रहा है वो चीट कर दो या तुम नोट्स मुझे दे दो, तो मैं उसको क्या बोलूंगी उस टाइम पे, हाउ एम आई गोइंग टू टैकल इन दैट सिचुएशन। रोल प्ले करें, इमेजिन करें और इस स्किल को प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, क्या हो गया जी, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो आपने गिफ्ट टेक्निक को इस्तेमाल करना है। जब बात आती है टू गेट समथिंग, आपने डियर मैन को इस्तेमाल करना है। और जब बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो आपने FAST फास्ट को इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और इस चीज को भी याद रखिए कि इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स जो है ना, वो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट कंट्रोलिंग अदर्स, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग हाउ यू शो अप, ठीक है। आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो आपसे एग्री करे या ना करे, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ टू बी जेंटल, टू बी असर्टिव, टू बी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये कुछ कोपिंग स्टेटमेंट्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज स्किल्स। कुछ स्टेटमेंट्स है जी, जिस तरह कि आई कांट चेंज अदर्स एक्शंस और वर्ड्स बट आई कैन चूज हाउ आई रिस्पॉन्ड। आई विल सर्वाइव इफ आई गेट टोल्ड नो, ठीक है।
Standing up for myself for small things can be just as important as big things to others. Giving is not the be all of life. I'm not an important person. I am an important person in this world too. I will forgive in order to move forward. I sometimes have a right to assert myself, even if I may inconvenience others. Okay? I deserve to get what I need. It's okay to want or need something from someone else too. These are some of the statements that you can read again and again and again and again जब तक आपको ये याद नहीं हो जाती, जब तक आपको ये रट नहीं जाती. अच्छा जी. ऑलराइट, ये है जी ट्रबल शूटिंग इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स. अच्छा, इनका क्या पर्पस है कि देखिए कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार भी ट्राई टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली लेकिन फिर भी नहीं हो रहा होता और आप ये सोच रहे होते हैं कि मे बी डीपीटी इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, क्या प्रॉब्लम बीच में आ रही है. यहाँ पे कुछ 6 for me. Do I know what I want in this interaction? It is, ठीक है. Write out your goals and priorities. Do I have the skills I need to get along with others? ठीक है. हर स्किल की इंस्ट्रक्शंस को पढ़े, उसको समझे और फिर उसको अप्लाई करें. Are my emotions getting in the way of using my skills? ठीक है, यहाँ पे आप टिप स्किल्स का इस्तेमाल करें, सेल्फ सूदिंग का इस्तेमाल करें, माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करें. Is the environment more powerful than my skill? ठीक है, जहाँ पे आपने रेडिकल एक्सेप्टेंस को इस्तेमाल करना है. Are worries, assumptions and myths getting in my way? Are my short term goals getting in the way of my long term goals? ये बड़े इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनको आप डेली गो थ्रू कर सकते हैं. यू कैन चेक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद मी, या मैं क्या गलत कर रहा हूँ. ठीक है जी. आपने पैनिक नहीं करना अगर ये स्किल्स नहीं काम करे. जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या मुझे अपने गोल के बारे में पता है, मैं कौन सा स्किल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मेरे इमोशंस बहुत हाई है, क्या मेरे assumptions तो नहीं बीच में आ रहे, क्या कुछ जजमेंट तो नहीं मेरी आ रहा. बिकॉज डीबीटी इज जस्ट नॉट अबाउट स्पीकिंग वेल, इट्स एक्चुअली अबाउट कि आप पहले सोचें और फिर बोलें. सोच के बोलेंगे ना तो हमेशा अच्छी चीजें बोलेंगे. सोच के इंसान कभी भी गलत काम या गलत चीज नहीं बोलता. अच्छा जी, ये चीट शीट है, इसको आप अपने जहन में रख लें, अपने पास रख लें. यू कैन यूज दिस स्किल जिसमें सारी चीजें हैं. हमने माइंडफुलनेस पे क्या बात की, वॉइस मैट की बात की, वर्ड स्किल्स की बात की, हाउस स्किल्स की बात की, डिस्ट्रेस टॉलरेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, इमोशनल रेगुलेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस क्या चीज के लिए होता है, रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए क्या क्या उसके अंदर फर्दर टेक्निक्स है. ठीक है. अच्छा जी, ये भी सेम चीज वही है. क्या बात कर रही है डीपीटी, किस चीज में आपको हेल्प करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है. चेंज एंड एक्सेप्ट के बारे में बात करता है. डूइंग द बेस्ट आई कैन डू बेटर. कौन कौन सी स्किल्स है, माइंडफुलनेस स्किल्स है, ये सारी स्किल्स आपको इसमें लिखी हुई है. ठीक है, तो ये एक आप समझ लें आपके पास ये होना चाहिए. ये पूरा डीपीटी को जो है ना आपने वाइड अप इसको समराइज किया हुआ है. ठीक है जी. उसके बाद ऑलराइट, दैट्स इट from my side. Thank you everyone. I had amazing time with you. बहुत जल्दी टाइम गुजर गया. I wish that हम इसको और भी एक्सटेंड कर लेते बिकॉज ये वो स्किल्स है ऑनेस्टली इनके बारे में जितना बात करो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है. I want all of you to reflect on the entire course, entire thing that you have studied. The group is still active. We are part of that. If any question, anything that you want to ask, you want me to explain anything to you, you can always let me know. आप सब अपना quickly camera turn on कर ले. I'm going to take a quick snap before we go, so that we can, it's not that I'm saying goodbye to you because I know that I will see you all again very soon, inshallah. कोर्सेज चलते रहेंगे, कन्वर्सेशन होती रहेगी, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और सिखाने को भी बहुत कुछ मिलता है. ठीक है जी. और इफ एनीवन वांट्स टू से समथिंग, कोई चीज कहना चाहते हैं, किसी चीज की कोई इम्प्रूवमेंट कोई बताना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट. उसके अलावा मैं आपको फीडबैक फॉर्म भी भेजूंगी, वो जरूरी है फॉर द सर्टिफिकेट. उसको फिल फॉर्म जो है ना वो फिल करना है एंड देन आई विल फॉरवर्ड दैट और फिर आपको इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स आपको मिल जाएंगे सर्टिफिकेट. ऑल राइट. अच्छा जी, बाकी रबिया इकरा भी प्लीज अपना ऑन कर ले. आयमा का फोन नहीं चल रहा, नो प्रॉब्लम. थैंक यू रुखसे मादर जी से वंडरफुल सेशन. आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा. ऑल राइट, लेट्स डू अ क्विक स्टेप.
Ima said you were great throughout. Thank you so much, Ima. All right then. Challenge. 3, 2, 1. All right. Beautiful faces. Lovely. Challenge. Thank you, everyone. I will see you soon, inshallah. Or Allah Hafiz from my side. If anyone wants to say anything, you can. Allah Hafiz. All right. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.